آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ سکندرآباد سے گوا راستے ایکسپریس ٹرین کا آغاز مرکزی وزیر کشن ریڈی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ گستاخانہ حرکتوں میں ملوث ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان حرکتوں کو روکنے کے لیے قانون سازی ضروری، یونائیٹڈ مسلم فورم کا بیان۔ مرکزی محکمہ داخلہ کی جانب سے منعقد ہونے والی میٹنگ میں سی ایم ریونت ریڈی کریں گے شرکت، پیر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگی میٹنگ۔ چراغ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ہوئے سڑک حادثے میں ہلاک نوجوان کی موت پر قتل کا شبہ، پولیس سے مؤثر کارروائی کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ گستاخانہ حرکتوں میں ملوث ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور مذہبی منافرت پھیلانے اور شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو روکنے کے سلسلے میں مؤثر قانون سازی بھی کی جائے۔ جنرل سیکرٹری یونائیٹڈ مسلم فورم مولانا سید منیر الدین احمد مختار کی دستخط سے جاری بیان میں فورم کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے دونوں جہان سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی رحمت کی شان میں ذرا برابر گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ناموس رسالت کے لیے مسلمان اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ لٹانے تیار ہے۔ بھارت میں آئے دنوں شان رسالت مآب میں گستاخی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور دشمنان اسلام اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے مسلمانوں کے صبر و تحمل کو آزمانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں مسلمانوں نے دریدہ دہنوں کے خلاف اپنی شدید جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے خلاف دستور کے حدود میں اپنا رد عمل ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ بار بار اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اس کا عادی بنا دے تاکہ مستقبل میں مسلمان خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک مسلمان کے لیے محبت رسول اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ملک بھر کے مسلمان کسی بھی گستاخ یتی نرسنگھانند ہو یا رام گیری کے دریدہ دہنی پر خاموش نہ رہیں۔ حکومتوں سے بھی مطالبہ کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے بانی یا سربراہ یا مقدس شخصیات کے خلاف زبان درازی پر سخت ترین دفعات کے ساتھ مقدمات کا اندراج کرتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ کسی مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والے کے خلاف امتیازی طور پر قانون کا استعمال نہ کیا جائے اور کوئی بھی گستاخی پر تمام کے خلاف یکساں سلوک کیا جائے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا خالص سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکرٹری، مولانا مفتی معراج الدین علی ابرار، جناب ایم ماجد، مولانا شفیق عالم خان جامعی، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا ابو طالب اخباری، مولانا فراست علی شتاری اور مولانا ظہیر الدین صوفی کے علاوہ دیگر اراکین نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی کی بھی گستاخانہ حرکتوں پر سخت کارروائی کرے اور مستقبل میں اس طرح کی حرکتوں کو روکنے قانون سازی کی جائے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داران نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ گستاخوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور انہیں گرفتار کرنے پر ان کی رہائی کا سدباب کرے، ان کی طویل حراست کو بھی یقینی بناتے ہوئے سخت سزا دلوائے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر گوا ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
ये एक्सप्रेस सिकंदराबाद ता वास्कोडी गामा रेलवे स्टेशन गोवा तक चलाई जा रही है, जो हफ्ते में 2 बार रहेगी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मरकज़ी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आज सिकंदराबाद ता वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन गोवा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, साउथ सेंट्रल रेलवे के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद और रियासत के शहरियों को नवरात्रि विजयदशमी के मौके पर मरकज़ी हुकूमत और महकमे रेलवे की जानिब से सिकंदराबाद ता गोवा राष्ट्र ट्रेन का तोहफा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद गोवा ट्रेन 9 अक्टूबर से बाज़ाब्ता चलाई जाएगी, जो सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, शादनगर, महबूबनगर, करनूल और दीगर मुकामात से होते हुए गोवा पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के आगाज़ से दोनों तेलुगु रियासतों के ऐसे शहरी व सयाह जो तफरी, तालीम, तिजारत और सेहत के लिए गोवा का सफ़र करते हैं, उन्हें काफ़ी सहूलत होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना जितेंद्र कल बरोज़ पीर 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में मरकज़ी महकमे दाखिले की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में कल नई दिल्ली में मुल्क भर के वज़राए आला, रियासती वज़रात ख़ारजा, चीफ सेक्रेटरीज़, DGPs के साथ इजलास मुनक़्क़िद होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में मावीज़ और नक्सलाइट्स के मसाइल पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटरीट में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पेश किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 11 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे के मौके पर इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के संग बुनियाद और भूमि पूजा मुनक़्क़िद होगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 25 एकड़ अराजी पर SC, ST, BC, माइनॉरिटी और जनरल तलबा के लिए 5,000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाने का मंसूबा बनाते हुए इस स्कूल के डिज़ाइंस की तैयारी गुज़िश्ता 3 माह से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कैंपस में तालीम के साथ साथ क़याम व ताम की सहूलत के अलावा क्रिकेट ग्राउंड और एथलेटिक्स और दीगर गेम्स की सहूलत फराहम करने के अलावा असली सहूलियात और हवादार माहौल में तलबा को इंटरनेशनल मियार की तालीम फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम और दीगर महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంతో 12th క్లాస్ వరకు ఇందులో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో చాలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పక్కా భవనాలు లేక చాలా చోట్ల అద్దె భవనాల్లో అట్లాగే రకరకాలైనటువంటి కళ్యాణ మండపాల్లో రకరకాల బిల్డింగ్స్లో ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణంలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన మేరకు ఆనాడు మేము చెప్పినట్టుగా ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించిన బిడ్డలందరికీ ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి విద్యని ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం నాకు తెలిసి
ఈ దేశ చరిత్రలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి అసలు రెస్ట్రిక్షన్ मुकरम जा बहादुर की यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग की जानिब से फाउंडर्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नवाब सुल्तान गालिब अवध अल क़ईती की जानिब से निज़ाम्स पर तहरीर की गई किताब की कौंसिल जनरल तुर्किये के हाथों इजराई अमल में लाई गई। प्रिंसेस असरा ने इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुसर्रत महल पुरानी हवेली में मुनक़दा इस तकरीब में शहर के कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कौंसिल जनरल रिपब्लिक ऑफ तुर्की हिज एक्सेलेंसी ओरहान यलमान ओकान ने हिज हाइनेस सुल्तान गालिब बिन अवध अल क़ईती की जानिब से तहरीर की गई किताब बउनवान द निज़ाम्स सिकंदर जा नासिरुद्दौला द सब्सिडियरी अलायंस एंड द टू ग्रेट इंडियन रेबिलियंस की रस्म इजराई अंजाम दी। इस तकरीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर एजाज़ी कौंसिल जर्मनी बराए तेलंगाना और आंध्रा मिसेस अमिता देसाई के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग की यौम तासीस के ज़िमन में इस इवेंट का अहतमाम किया गया था। इस तसनीफ़ को मुकरम जा ट्रस्ट ही की जानिब से शाया किया गया है। इस तकरीब में प्रिंसेस असरा जा ने खुसूसी तौर पर शिरकत को यकीनी बनाया। पुरानी हवेली मसरत महल में मुनक़दा इस तकरीब में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस तकरीब से ख़िताब करते हुए कौंसिल जनरल तुर्किये ने अपनी मसरत का इजहार किया कि उन्हें इस किताब की इजराई का मौका हासिल हुआ है। उन्होंने अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर ट्रस्टी मुकरम जा ट्रस्ट नवाब फैज़ बिन जंग के अलावा प्रिंसिपल स्कूल मिसेस रेखा वाधे, एकेडमिक एडवाइज़र कौसर सईद और दीगर भी मौजूद थे। इस तकरीब में स्कूल के ख़दीम टीचर्स की खिदमात के एतराफ़ में मोमेंटो पेश किए गए, जबकि होनहार तलबा को तहनीत भी दी गई। And culture and how they shape the subcontinent. As the cover is revealed, we witness the culmination of months of dedication and hard work. This book will serve as a constant Thank you. We also have with us guest of honor, Miss Amita Desai. Let's welcome them all with a warm round of applause. Flowers are a way to express gratitude and respect. Our very own blooming buds. I now invite Naila Batul, who has scored 90%. Percentage. Boost their energies, please, by giving them a big round of applause. Next, we have Nikucha. Citizens. Today's celebration is special because we honor the birth of our founder and unveil. Kindly give a big round of applause. We have with us members of the Muqram Jar Trust for Education and Learning, our honorable trustees, Mr. Pest, who have always supported the school in various capacities. Today is much brighter because we have. अरे अल्लाह जो भी है अल्लाह रहमत करम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। अरे अल्लाह जितने भी हाज़रीन हैं अल्लाह इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में, इनकी नस्लों में, इनकी चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। Distinguished guests of the dais, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my happiness to be with you today in this very valuable school and at this very meaningful event. And I would like to thank once again for their kind invitation. Mr. Faisan asked me to speak about education. So, actually, we live
in an age which scientific developments rapidly affects our lives and change them just as rapidly. However, although these rapid technological developments make our lives easier, they also contain many threats and dangers. Although our children are Trust, Colonel Amdiapan, Principal, Mrs. Rekha Wade, members of the staff, invitees, parents, students, ladies and gentlemen. Well, I'd like to thank you all first for being a part of this event, celebrating 37th year of our founders, 37th Founders Day and 91st birth anniversary of our founder, Wala Sham Mukram Jah Bahadur, His Exalted Highness, the 8th Nizam of Hyderabad. Thank you. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून यतीम नरसिंहानंद को सख्त से सख्त सज़ा देने के मुतालबे के साथ मुल्क और रियासत के कई मकामात पर एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में भी कई मकामात पर एहतजाज किया गया। बल्लागुड़ा जहांगीराबाद में AMIM सीनियर लीडर अब्दुल खादर जिलानी और अब्दुल रशीद की निगरानी में एक एहतजाजी रैली निकाली गई और बल्लागुड़ा PS में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। शिकायत में अपील की गई है कि इस मलून के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर शेख मोईद, मोहम्मद मिनाज, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद अजहर के अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जान और हमारे माल, हमारी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा प्यारी जो चीज़ है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और आपकी आबरू है। कोई आदमी आपकी इज़्ज़त पर और आपकी आबरू पर कुछ अल्फाज बोलता है या आपकी इज़्ज़त के बारे में कोई बात कहता है तो हमारे जज्बात मजरूह होते हैं और हम जो है इस सिलसिले में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो है जमहूरी मुल्क के अंदर हैं। इस मुल्क के कवानीन के एतबार से हमें जो है कंप्लेंट के ज़रिए से हम जाना है, इसीलिए यहाँ हम इस वक्त में आकर के हम कंप्लेंट दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब जो है कंप्लेंट लेकर के उसकी जो है एक रिसिप्ट हमको दिए हैं पिटीशन की, तो ये कह रहे हैं कि अभी 1-2-3 दिन के अंदर जो है या फिर आज हम ACP साहब से बात करेंगे, बात करके उस सिलसिले में FIR दर्ज कर लेंगे। तो हम भी बोले हैं कि उनको 1-2 दिन का वक्त है, आप उस वक्त तक हमारी बात को अगर कबूल कर लिया और FIR दर्ज हो गया तो ठीक है, वरना हम फिर दोबारा यहाँ हाजिर होंगे सबको लेकर के। और जगह जगह पे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट हो रहा है, ये काबिल मुबारकबाद है। लेकिन हर मुसलमान को जो है इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हर मुसलमान को इसके अंदर शऊर बेदार होने की ज़रूरत है। ये हमारी जो है कोई ज़ाती मसला नहीं, बल्कि हमारी ज़ात से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मसला है। इस सिलसिले में मुसलमान इस वक्त में परेशान हैं और बेचैन हैं और पूरे मुल्क के अंदर जो है इस किस्म की फ़िज़ा जो है ख़राब की जा रही है। हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे जालिम और ऐसे जो है ख़तरनाक किस्म के लोग जो मुल्क के अंदर जो है अमन और भाईचारगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जालिमों पर ऐसे दफ़ात लगे कि फिर उनको बेल ना मिल सके। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रेसिंग करने वाले और बाइक पर स्टंट्स करने वाले नौजवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ियों को ज़ब्त किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके डेयरी फार्म के करीब ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसे नौजवानों की निशानदेही की जो स्पोर्ट्स बाइक लेते हुए रेस चल कर रहे थे और इस पर स्टंट्स भी कर रहे थे। ये स्टंट्स करना बसा औक़ात ख़तरनाक होता है, जिससे दूसरों की जान भी ख़तरे में पड़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 6 बाइक्स को रोक कर उन्हें ज़ब्त किया और नौजवानों को भी हिरासत में लेते हुए केसेस भी दर्ज किए गए।
चिरागपली संगारेड्डी हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में महलूक नौजवान की मौत पर उनके घर वालों ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इस हादसे में हकीमपेट के साकिन मोहम्मद आबिद कुरैशी की मौत वाक़ हुई थी, जिसके बाद मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ताहम पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात में तसाहुली का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। महलूक के घर वालों ने पुलिस के आला अहदेदारों से अपील की है कि वो इस केस की मौसर तहक़ीक़ात को यकीनी बनाएं और मुश्तबा वाक़े में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। मेरे शोहर मोहम्मद आबिद कुरैशी थे, वो मैं नहीं थे, मेरे को बोल के भी नहीं गए, कहाँ जा रहे बोल के, अब भी आरूम बोल के गए खाली। फिर गाड़ी आई थी, खारन दिए बोल रहे, फिर उसके बाद उनके बड़े भाभी भी थे बवासीर, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, चले गए। वो ले गए थे ये बशीर भाई, दुआ पढ़ने वाले बशीर भाई, उन्होंने आके लेके गए मेरे आदमी को। नहीं, मेरे को अम्मी अब्बा को पापा को अपने आदमी गाड़ी में बिठा लेके गए, मम्मी बोलते बोली मेरी बच्ची आके, मेरी बच्ची को फ़ोन दे दिए, चले गए और कुछ भी बात नहीं हुई। मेरे घर से निकलते वक्त में क्या हुआ, कहाँ जा रहे पूछे तो अब भी आरूम बोल के गए, कभी भी मेरे को अब भी आरूम बोल के चले आते थे और कुछ भी नहीं। मेरे आदमी को टक्कर लग के ऐसा रोड पे एक्सीडेंट कर के छोड़ के चले गए। मेरे आदमी को कोई पूछने वाला भी नहीं था, वहाँ पे ठहरे हुआ भी नहीं था। वहाँ पे मेरे आदमी के साथ क्या हुआ, मेरे को इंसाफ होना है। मेरे को वहाँ पर मेरे आदमी के साथ क्या हुआ मेरे को मालूम होना है। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, मैं कैसा रहूँ उनके बगैर, कैसा ज़िंदगी गुजारूँ, कैसा करूँ मैं। मेरे आदमी के हक़ में इंसाफ मिलना। मेरा आदमी किसी की कोई तकलीफ़ में नहीं था, हर बच्चे के साथ बहुत अच्छा रहता था। बड़े बूढ़े जवान अब्बा की खिदमत करने के लिए आए हुए थे, यहाँ रुके हुए हम। कब आए कब ले लेके गए नहीं मालूम मेरे को। यहाँ पे दुआ पढ़ते रहते हैं, बुखार आई या फिर किसी को कुछ हुआ तो इसमें दुआ पढ़ते और कुछ भी। मेरे भाई मोहम्मद आबिद कुरैशी वल्द मोहम्मद करीम साहब कुरैशी को यहाँ से घर के पास से लेकर गया, ज़बरदस्ती लेके गया और बाबा बशीर साहब, मौला बाबा के नाम से वो मशहूर है, यहाँ पर हकीमपेट कुंटा टोली चौकी हैदराबाद से लिया गया और जाकर वहाँ पर ऑन दी स्पॉट एक्सीडेंट करके उनको ख़त्म किया गया। ये साजिश है क्या है अल्लाह जाने, लेकिन हमको कोई इत्तला नहीं है। और मेरी अहलिया ऊपर से आवाज़ देने के बावजूद वो लोग यहाँ से उठाकर लेकर गए। मेरे बीवी गवाह है और बाजू में मेरे पड़ोसी सलीम भाई गवाह है, ये तमाम लोग गवाह है। और ये हादसा होने के बाद उन खानदान अफराद के जितने लोग मुसाफिर थे, कोई भी आज तक हाजिर नहीं हुआ, ना मैयत में आया, ना दवाखाने में आया, ना हमसे कहीं मिला, ना उनके साले है रिश्तेदार, ना उनसे बात हुई, ना हमारे किसी भाई से बात हुई, किसी से कोई इत्तला नहीं हुई। ये बाबा का जो भी बात है हक का फैसला करे, हक बात जाहिर करे, हक के साथ
انصاف کے ساتھ ان معصوم بچوں کا حق کے ساتھ فیصلہ کرے. یہ میڈیا والوں سے اور تمام بڑے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ حق بات. دکن NRI سوشل اینڈ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی ماہانہ میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کے دوران جاریہ ماہ کیے گئے فلاحی کاموں پر مشتمل رپورٹ پیش کی گئی اور اگلے ماہ کیے جانے والے کاموں کی منظوری بھی حاصل کی گئی. دکن NRI سوشل اینڈ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ماہانہ اجلاس ٹرسٹ کے ذیلی دفتر واقع ریتی باولی میں منعقد کیا گیا. ٹرسٹ میٹنگ کی صدارت چیئرمین انجینئر سید عبدالقدیر خالد نے کی، جبکہ سید کلیم وائس چیئرمین نے اجلاس کی نگرانی کی. صوفی سلطان شتاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کی. ماہانہ اجلاس میں پچھلے ماہ کیے گئے فلاحی کاموں کی رپورٹ پیش کی گئی، جبکہ جاری ماہ کیے جانے والے کاموں کی منظوری بھی حاصل کی گئی. چیئرمین ٹرسٹ نے بتایا کہ جاریہ ماہ اور نومبر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بلینکٹ ڈرائیو چلائی جائے گی، جس کے دوران 500 سے زائد بلینکٹس غربا، مساکینوں اور مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ سماجی ذمہ داری کے تحت اگلے ماہ نومبر میں MY ٹرسٹ کے اشتراک سے ایک ادبی اجلاس اور مشاعرے کا اہتمام کیا جائے، جس کی صدارت معروف شاعر صوفی سلطان شتاری کریں گے. اس اجلاس میں ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، فینانس سیکریٹری، ایجوکیشنل سیکریٹری کے علاوہ دیگر اہم اراکین نے شرکت کی اور اپنی تجاویز بھی پیش کی. صوفی سلطان شتاری کی دعا پر ماہانہ اجلاس کا اختتام عمل میں آیا. یہ جو ہم نے اماؤنٹ رکھایا تھا وہ ٹرسٹ کا اماؤنٹ ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑی سا وہ ہے کہ بھائی ہمارے بعد پھر کیا ہوگا اس کا، اگر ہم مینشن نہیں کریں گے اور اس کو اگر ہم اس کا کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے تو کل ہمارے بعد اگر اس کو کون پوچھے گا پھر وہ کہاں ہے، وہ اس کا کلیئرنس ہونا. جدہ کا سپریٹ وہ جو ہے 5000 روپیز دیتے ہیں منتھلی اینڈ اٹ از ڈیڈیکیٹڈ فار OAH اولڈ ایج ہوم پرٹیکولرلی فار دیٹ پرپز. ہے سبحان خان بھائی 1000 روپے دیتے ہیں، بارش قدیر 1000 روپے دیتے ہیں اور 1000 تیسرے ہیں جو کہ ان کو 3 مہینے فری نہیں دے رہے ہیں. کتنا ہو رہا آپ کا مہینے کا؟ یہ راشن کی بات میں جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں بالکل. ابھی جو ہے آپ کو میں سناتا ہوں، ایجوکیشن کا بھی ہے، راشن بھی ہے، جی 22,820 ہم سے آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر. سکندرآباد سے گوا راستے ایکسپریس ٹرین کا آغاز مرکزی وزیر کشن ریڈی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. گستاخانہ حرکتوں میں ملوث ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان حرکتوں کو روکنے کے لیے قانون سازی ضروری، یونائیٹڈ مسلم فورم کا بیان. مرکزی محکمہ داخلہ کی جانب سے منعقد ہونے والی میٹنگ میں CM ریونت ریڈی کریں گے شرکت، پیر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگی میٹنگ. چراغ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ہوئے سڑک حادثے میں ہلاک نوجوان کی موت پر قتل کا شبہ، پولیس سے مؤثر کارروائی کرنے کا کیا گیا مطالبہ. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز.
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।